یہ ہیں بدلو کی نشریات۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام سندھ نامہ کے ساتھ میں ہوں فیاض نائچ، اور میرے ساتھ موجود ہیں ملک کے معروف آئینی اور قانونی ماہر اور سینئر تجزیہ نگار بیرسٹر ضمیر گھمرو صاحب۔ گھمرو صاحب سندھ کے ایڈوکیٹ جنرل بھی رہ چکے ہیں، اور ظاہر ہے جس طرح میں نے بتایا کہ ملک کے معروف آئینی اور قانونی ماہر ہیں۔ آج ہم ان سے سندھ کے بارے میں جو ہے ان سے گفتگو کریں گے، تو آئیں اس گفتگو کی ابتدا کریں۔ بیرسٹر صاحب السلام علیکم۔ بیرسٹر صاحب، کیا یہ جو 18ویں ترمیم کے بارے میں پیپلز پارٹی نے کہا کہ اس کو انکروچ کرنے کی بات ہو رہی ہے، بلاول بھٹو صاحب سے لے کے سب نے باتیں کی، اور ہم اس پہ کمپرومائز نہیں کریں گے، یہ کریں گے، یہ باتیں ہم نے سنی۔ پھر ہم نے دیکھا کہ کراچی کمیٹی کے نام پہ کوئی باتیں ہوئیں، پھر وہ کمیٹی جو ہے وہ پروونشل کوآرڈینیشن اس کی کمیٹی بن گئی۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ جو آئی لینڈس ہیں جو 12 ناٹیکل مائلز کے اندر ہیں، بھنڈار اور وغیرہ، تو اس پہ وفاق نے کوئی کمیٹی بنا دی، اس پہ بھی وہ نہیں ہوا۔ اسٹیل مل کی زمین جو سندھ کا بڑا رہا ہے کہ وہ اسٹیل مل کے پرپز کے علاوہ اگر استعمال نہیں کر سکتے وہ آپ سندھ کو واپس کر دیں گے، تو وہ اس کو بھی وزیر اعظم کی ہاؤسنگ اسکیم پہ دیا گیا۔ اور نالوں کی صفائی کے لیے اتنا تماشا کھڑا کیا گیا، آخرکار سندھ گورنمنٹ نے وہ این ڈی ایم اے اور ایف ڈبلیو کے حوالے وہ سارے معاملات کر دیے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ انکروچ ہو رہی ہے 18ویں ترمیم کی جو اچیومنٹس تھیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ 18ویں ترمیم پر شروع سے جو ہے نا وہ مکمل عمل نہیں ہوا تھا۔ جو امپلیمنٹیشن کمیٹی بنی تھی 18 ترمیم کے تحت، انہوں نے کافی کام کیا، معیار رضا ربانی صاحب نے، لیکن کافی چیزیں جو ہے وہ رہ گئی تھی، اور بعد میں جو ہے وہ کافی جو پروونشل سبجیکٹس پر وہاں منسٹریز بھی بن گئی۔ تو جب دیکھیں کہ نواز شریف اور پی ایم ایل این اور پاکستان پیپلز پارٹی تو 18 امینڈمنٹ میں پارٹنر تھے، انہوں نے اکٹھے لائی تھی، لیکن پی ٹی آئی جو ہے وہ بیسیکلی 18 امینڈمنٹ کے خلاف ہے۔ جب ان کی گورنمنٹ آئی سینٹر میں، کیونکہ وہ اس وقت بائیکاٹ میں تھے، اس وقت بائیکاٹ، جماعت اسلامی بائیکاٹ میں تھی، یہ بائیکاٹ میں تھے، اس حوالے سے لیکن دوسری جماعتوں کے تو سینیٹ کے ممبران تھے، لیکن پی ٹی آئی سینیٹ میں بھی نہیں تھی۔ تو اس حوالے سے جب ان کی گورنمنٹ آئی، ایک صوبے میں، 2 صوبوں میں گورنمنٹ ہے اس کی، سینٹر میں گورنمنٹ ہے، اور وہاں الائنس ہے ان کا بیب کے ساتھ، تو انہوں نے جو ہے وہ اس کو انکروچمنٹ شروع کر دیا، کیونکہ پیپلز پارٹی کی ایک ہی گورنمنٹ ہے پروونشل، تو ظاہر ہے تو سارا پریشر جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی پر ڈالا گیا مختلف حوالوں سے، مختلف ایشوز کے حوالے سے، لیکن ابھی تک جو ہے وہ کوئی ایشو ایز سچ جو ہے پیپلز پارٹی نے کنسیڈ نہیں کیا ہے۔ فار ایگزامپل آپ نے بات کی کراچی کمیٹی کی، وہ پروونشل چیف منسٹر نے اپنی سربراہی میں خود بنائی ہے اور خود ہی نوٹیفائی کی ہے، اور ایز سچ پروونشل جو چیف ایگزیکٹو ہے اس کو وہ ڈویژنل لیول پر، ڈسٹرکٹ لیول پر اور صوبے لیول پر ڈفرینٹ کمیٹیز بناتے رہتے ہیں، اس میں فیڈرل ریپرزنٹیٹیوز ہوتے ہیں، فیڈرل گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس کے بندے بھی بیٹھتے ہیں، اور کس صوبے میں بنی ہے؟ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے بندے، ڈیزاسٹر مینجمنٹ، ایون کمشنر کی میٹنگ میں جو ہے نا، ایون میں کہہ رہا ہوں کہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا تو معاملہ یہ ہے نہیں نا۔ یہ جو کمیٹی بنی ہے اس کے جو کام تھے، جو وزیر اعظم صاحب جو اس وجہ سے آئے تھے، جو یہاں پہ باتیں ہوئی تھی، پھر جو نوٹیفیکیشن نکلا تھا، وہ تو بالکل مختلف چیزیں ہوئی تھی نا۔ نہیں، یہ تو ایک تو کمیٹی بنی، وہ تو ویسے تو کنسیڈ کرنے کی بات آپ نے کی، مجھے یاد آ رہا ہے کہ کسی زمانے میں سندھ کے کوئلے کے اوپر ایک نوٹیفیکیشن پیپلز پارٹی کی وفاقی حکومت نے نکالا تھا، وہ واپس لیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اس میں ہمارے ایک دوست تھے، بیرسٹر صاحب تھے، وہ سپریم کورٹ میں چلے گئے تھے۔ نہیں، میں سپریم کورٹ میں نہیں گیا تھا، میں تھا، اچھا، لیگل نوٹس دیا تھا، وہ لیگل نوٹس دیا تھا کہ یہ آپ جو ہے وہ اس کو ختم کر دیں گے، کیونکہ پھر وہی نوٹیفیکیشن وہ انہوں نے واپس لے لیا۔ نہیں، وہی نوٹیفیکیشن پروونشل گورنمنٹ سے جاری ہوا تھا، اس میں کاما کی بھی ترمیم نہیں تھی۔ نہیں، وہ پروونشل گورنمنٹ میں اس کو پھر چیلنج کیا گیا تھا، پھر وہ جو ہے وہ پروونشل گورنمنٹ نے اس کو تبدیل کر لیا تھا۔ وہ اس میں فیڈرل منسٹرز ہیں، پھر تو لیجسلیشن آ گئی نا، پھر تو سندھ کول اتھارٹی بن گئی، پھر اس کے بعد لیجسلیشن آ گئی، پھر فیڈرل گورنمنٹ کا کوئی جو ہے وہ نمائندہ اس میں شامل نہیں تھا۔ اس میں یہ ہے کہ نہیں، سندھ کول اینڈ انرجی بورڈ میں وفاقی نمائندے آج بھی موجود ہیں؟ نہیں،
अभी तो नहीं है, अभी कोई नहीं है नुमाइंदा फेडरल गवर्नमेंट का, अब कोई नहीं है। सिंध कोल अथॉरिटी बनी हुई है, वो एक्ट के तहत बनी है। उसमें सिंध कोल अथॉरिटी पहले बनी थी बेनजीर साहबा के वो दौर में, पहले बनी थी, अभी उसके बाद बोर्ड अभी बना था। उसके बाद एनर्जी डिपार्टमेंट इन्होंने बना लिया ना, एक सेपरेट डिपार्टमेंट बना लिया, तो उसमें तो किसी की रिप्रेजेंटेशन नहीं है, वो तो डिपार्टमेंट चीफ मिनिस्टर के अंडर एनर्जी में तो एज अ होल देख रही है ना, कोल के बारे में कोल एंड एनर्जी बोर्ड बना था, आपको अगर है। याद यस हो, यस यस, जिसमें ये सारे चीजें नहीं नजर अभी आए। जो कॉल चले अब इस बात को आगे बढ़ा लेते हैं। सिंगल नेशनल करिकुलम की बात हुई, मेरी सईद गनी साहब से बात हुई तो उसने कहा कि हमने कंसेंट नहीं दिया, लेकिन फिर हो गया। नहीं, क्या हुआ, नोटिफिकेशन नहीं निकला। नहीं, सिंध गवर्नमेंट ने तो एग्री कर लिया कि सिंगल नेशनल करिकुलम पे बात हो रही है। अभी 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 उन्होंने एग्री नहीं किया, उन्होंने उनका मौक़िफ़ ये था कि जो है वो हमने पहले ही नोटिफिकेशन करिकुलम का निकाल दिया है, तो हम इसको जो है वो आपका करिकुलम आप दूसरे सूबों सेंटर में जो है नाफिज कर सकते हैं, हम नाफिज नहीं करेंगे। हमने पहले ही नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया है, सिंध गवर्नमेंट ने पहले ही करिकुलम का नोटिफिकेशन। चले मलिक रियाज को ज़मीनें दे दी, फिर हमारी ज़मीनें जो हैं वो स्टील मिल की ज़मीनें, उस पर वफाकी हुकूमत जो है वो प्रोग्राम बना रही है, हाउसिंग स्कीमें बना रही है। वो हमारे जो आइलैंड्स हैं, जो भंडार और बिंडी, उसके ऊपर भी जो है फेडरल गवर्नमेंट ने कमेटी बना दी है। हम एज अ प्रोविंशियल गवर्नमेंट तो कहीं पे कोई नहीं करे। भिंडी जो ये दो आइलैंड्स हैं जो रिसेंट इनका, उसका तो मौक़िफ़ आ गया है सिंध गवर्नमेंट का, वो तो उन्होंने अपोज किया है सख्त। इस्माइल राहू का डॉन में आ गया है, प्रोविंशियल मिनिस्टर का, नवाब तैयब टारपुर का आ गया है, दूसरे मिनिस्टर्स का भी आ गया है मेरे ख्याल में। उनका तो ये आ गया है कि हमारी प्रॉपर्टी है। अभी फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से कोई नहीं प्रपोजल है, नहीं कोई जो है वो ऐसी कॉन्क्रीट मूव है जिस पर जो है वो सिंध गवर्नमेंट उस पर जो है वो स्पेसिफिकली उसको जो है वो काउंटर करे। अभी तो कोई मीटिंग हुई थी फेडरल गवर्नमेंट की उस सिलसिले में, तो क्या करे सिंध गवर्नमेंट, अभी प्रपोजल ही नहीं है ऑन द टेबल, उन्हें अपोज कर दिया है, उसके अलावा क्या करे। नहीं, लेकिन जो हमने देखा ना कितने मामला थे जहाँ पे चीफ मिनिस्टर ने बाकायदा ख़त लिखा, जिस तरह हमारा ये जो नोटिफिकेशन निकला था एनएफसी के ऊपर, तो चीफ मिनिस्टर ने खत लिखा, राइट, तो एक ऑफिशियल करस्पॉन्ड किया कि आपका वो तो नोटिफिकेशन उन्होंने निकाला था ना, इसमें तो कुछ नहीं है। मैं क्या करूं, कमेटी तो बनाई है फेडरल गवर्नमेंट के अंदर बैठ के, कमेटी जो अपना आइलैंड्स के लिए कमेटी, स्पेशल कमेटी बनी है। नहीं, वो तो कमेटी कोई नहीं बनाई है, कोई नहीं बनाई है, कोई नोटिफाई नहीं हुई, कोई नोटिफिकेशन नहीं निकला, कहाँ निकली है ये आपने आपकी नज़रों से गुजरी नहीं है? कोई कमेटी नहीं बनाई, कोई कमेटी नहीं निकली, कोई। ये तो ऐसे ए प्रपोजल है फेडरल गवर्नमेंट का कि जो प्रेस में आया है कि इन पर एक मीटिंग हुई है, कोई कॉन्क्रीट कोई प्रपोजल, कोई राइटिंग में कोई नहीं, वो तो पहले एक तो मलिक रियाज का जो मंसूबा था इन आइलैंड्स के हवाले से वो तो और था, लेकिन अभी रिसेंटली जो डेवलपमेंट हुई नहीं है, कोई चले स्टील मिल की ज़मीनों के बारे में तो फैसला हुआ है ना कि वो उसमें नहीं, मुझे वो भी उसमें राइटिंग में कुछ नहीं हुआ, राइटिंग में सिंध गवर्नमेंट को कुछ भी नहीं मिला। सिंध गवर्नमेंट ने ये डिमांड किया था कि स्टील मिल, क्योंकि जो इंडस्ट्री का सब्जेक्ट है वो 18th अमेंडमेंट के बाद प्रोविंशियल है, वो पहले भी प्रोविंशियल था इंडस्ट्रीज़ का सब्जेक्ट, सिर्फ जो डिफेंस से रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ हैं वो फेडरल गवर्नमेंट के पास है, या जो नेशनल इंडस्ट्री जो है वो लेजिस्लेशन की पार्लियामेंट ने कि ये ज़रूरी है फेडरल गवर्नमेंट के लिए, वो फेडरल गवर्नमेंट के पास है। बाकी जो भी इंडस्ट्रीज़ का सब्जेक्ट है वो जो है वो प्रोविंशियल है, तो इस वजह से ये स्टील मिल को तो पहले ही जो है वो प्रोविंस को ट्रांसफ़र करना चाहिए था। मैं इस मौक़िफ़ का हूँ, जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट जो तो आपको अस्पतालें नहीं देने के लिए तैयार, हाँ वो तो आपको हॉस्पिटल्स देने के लिए तैयार नहीं। क्वेश्चन ये है कि इंडस्ट्रीज का जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है स्टील मिल इंडस्ट्रीज में आ जाता है, तो हाउ फेडरल गवर्नमेंट कैन कीप दी स्टील मिल्स, तो ये तो एक इशू है ना कि ये तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की लैंड भी उसकी है और सब्जेक्ट भी उसका है, तो मेरे ख्याल में सिंध गवर्नमेंट को उस तरीके से टेकअप करना चाहिए। तो अभी आपके ख्याल में सिंध गवर्नमेंट ने उसको उस तरह टेकअप नहीं किया? सिंध गवर्नमेंट ने उनसे डिमांड किया था कि स्टील मिल हमारे हवाले की जाए, क्योंकि डिमांड कोई रिटन फॉर्म में डिमांड की थी, ऑफिशियली भी की थी, स्टेटमेंट्स आए थे मेरे ख्याल में, ऑफिशियली का मुझे लेटर का पता नहीं है, लेकिन उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया था, सिंध के सीएम ने भी और सईद गनी साहब ने भी किया था कि ये स्टील मिल जो हमारी सिंध गवर्नमेंट का ये मौक़िफ़ है कि ये हमें दी जाए, हमें ट्रांसफ़र की जाए। अच्छा, ये कमेटी बनी है अपना सिंध के अंदर, कोऑर्डिनेशन इम्प्लीमेंटेशन पता नहीं, पहले तो उसको जो नाम दिया था कि कोई कमेटी बन रही है, फिर उसको प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन कमेटी बना दिया गया। हमने देखा कहा था किसी ज़माने में एपेक्स कमेटियाँ भी बनी थी, वो एपेक्स कमेटी का भी जो सारा ज़ोर शोर हमने देखा था वो यहाँ पे देखा था, और वो भी कराची से रिलेटेड देखा था। कोई दादू के बारे में एपेक्स कमेटी के अंदर या लाड़काना के बारे में या अपना जो है उनके बारे में नहीं हुआ था। ये कराची हर वक्त क्यों इसमें रहता है और सिंध गवर्नमेंट इस तरह के उन
कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर के जो अरेंजमेंट्स हैं उसका हिस्सा क्यों बनती है? देखिए ना, कराची का जो इशू रहा है वो तो 1948 से रहा है। ये कराची जो है वो जो कैपिटल था सिंध का, और जो डोमिनेंट गवर्नमेंट थी पाकिस्तान की उसको जो है वो सीट ऑफ द गवर्नमेंट कराची में दी गई थी, और उसको कहा गया था, चीफ मिनिस्टर ने उस वक्त आयोग खोले थे, 700 एकड़ आपको ये लैंड है, फेडरल बी एरिया वहाँ आप ऑफिस बनाएं। लेकिन 48 में जब जो है वो अप्रैल में खोलोगी गवर्नमेंट डिसमिस की, बाद में जो है वो कराची को फेडरल टेरिटरी डिक्लेयर किया गया, जो गैरकानूनी अमल था, ठीक है ना, क्योंकि ये सिंध का कैपिटल था, उसको फेडरल टेरिटरी करार देना जो है वो उसमें अंडरस्टैंडिंग में शामिल नहीं था, लेकिन उसको फेडरल टेरिटरी करार दिया गया। पहले जो है वो पार्टीशन के बाद पहले सिंध का कैपिटल ख़त्म किया गया, फिर सिंध सूबा ही ख़त्म किया गया 1 यूनिट में। तो ये जो है वो मतलब कि ये 2 कार्रवाई हुई, और उसके बाद जो है वो 70 तक जो है वो कराची में डेमोग्राफिक जो तब्दीलियाँ आई, जो लॉट ऑफ जो है वो तब्दीलियाँ आई, उनके बाद जो है वो कंटिन्यूसली जो है वो फेडरल गवर्नमेंट का स्टेक रहता है, क्योंकि यहाँ ये माशी हब है, सिंध का कैपिटल है, इस वजह से वो किसी न किसी तरीके से कराची पर कंट्रोल रखना चाहते हैं। तो इस वजह से वो इस सिलसिले में इंटरफियर करना चाहते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में सिंध गवर्नमेंट ने जो है वो उस काफ़ी प्रेशर को जो है वो रेसिस्ट किया है, और ये जो कमेटी बनाई है ये कराची कमेटी भी नहीं है, ये कमेटी है कोऑर्डिनेशन कमेटी, क्योंकि इसमें इशू ये है कि सिंध गवर्नमेंट में काफ़ी जो स्कीम्स है, फॉर एग्जांपल सिंध की बड़ी स्कीम जो है RBOD है, और कराची में जो वाटर स्कीम्स हैं जो डिस्पोजल की, वो जॉइंट है इनकी, जिसमें जॉइंट फंडिंग है, फेडरल गवर्नमेंट की भी जॉइंट फंडिंग है, सिंध गवर्नमेंट की भी जॉइंट फंडिंग यानी S3 और अपना K4 की ये जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है जो ना इंडस्ट्रियल, वो RBOD की बात कर रहे हैं। नहीं, एक तो RBOD तो पंजो अपना दादू से गुजरता है, बदीन जाता है वो ना, मंचर से। लेकिन उसके अलावा भी कराची की जो सर्टेन स्कीम है, STPs है, वो तो CTPs, वो अपना तो वो उसमें जॉइंट फंडिंग थी, सीवरेज लाइन का मंसूबा S3 नहीं, S3 भी है और दूसरे मंसूबे भी हैं। तो ये जो और K4 का जो है वो तो सिंध गवर्नमेंट का है, लेकिन वो कहते हैं कि जो है वो इस पर हम कोऑर्डिनेशन करें, फंडिंग जो है वो फेडरल गवर्नमेंट कोई जो है वो इसमें तरीका निकाले। तो सिंध गवर्नमेंट ने कहा कि भाई जो है वो ये एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी पर हम तो कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। चीफ मिनिस्टर का स्टेटमेंट आया था कि एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट खुद एक्सरसाइज करेगी। एज़ फार एज कोऑर्डिनेशन इज़ कंसर्न, वो तो हो सकती है ना, वो तो प्रोवाइडेड है। वो उसमें ये है कि वो जॉइंट फंडिंग जहाँ जिन प्रोजेक्ट्स पे होती है तो हम आपके साथ बैठ जाएंगे, आपकी जो फंडिंग आएगी, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट अब फंडिंग देती नहीं, वो प्रोजेक्ट्स वैसे ही तबाह हो जाते हैं। तो चीफ मिनिस्टर ने एक कमेटी बना ली है, उसमें कोई हर्ज नहीं, मेरे ख्याल में लीगल है। ये चलो फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंदर जिस तरह आप बता रहे हैं, जिस तरह आप इंटरप्रेट कर रहे हैं, अगर वो कमेटी बनती है, यही है। हाँ। लेकिन वो फिर फौजी हजरात भी उस कमेटी के मेंबर नहीं, देखो ना, ये तो आपके लॉ एंड ऑर्डर मीटिंग और में भी आते हैं ना। फौज कोई सेपरेट इदारा तो नहीं है ना, वो तो इसमें काम कर रही है ना। जो है वो आपकी एपेक्स कमेटी में भी थे, वो जो है वो मुख्तलिफ मीटिंग्स में जो है वो बैठते हैं, मुख्तलिफ मीटिंग्स में वो अपना इनपुट देते हैं, नॉट इन डेवलपमेंट कमेटीज़ लेकिन इन अदर लॉ एंड ऑर्डर मीटिंग्स, नॉट इन डेवलपमेंट कमेटीज़। लेकिन ये तो डेवलपमेंट कमेटीज़ में पहली मरतबा है, ये तो मैं एडमिट करता हूं। आपकी बड़ी मेहरबानी बैरिस्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। जी नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अपने मेज़बान फयाज़ नायच और आज के इस प्रोग्राम के शरीक गुफ्तगू बैरिस्टर ज़मीर घुमरो साहब को दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान। ये हैं बदलो की नशरिया।